Good afternoon, everyone. Welcome all of you. So the purpose of the meeting is that in RGF, we always talk about the students who are doing higher education. We are really proud of you. You people have shifted from your hometown to a new place. We are going to settle there. And throughout these years, the last 1 year, we all have gone through a critical stage, unexpected corona and COVID-19, which we never expected in our life, in our generation. So we all are faced so lot of difficulties, especially in the education sector. All in individually, each one of us individually also gone through a lot of problems, whether it is education sector, business sector, or service sector, or self-employment. Everywhere it was affected, and we all have gone through that stage in the last 1 year. Now the life is coming back to normal. Luckily, the vaccine has come, especially from our own country. So we all are proud of that. So we are going back to education sector, getting warm up. Students are coming back. Hostels are again colorful. So we all are happy that life is coming back. Even we also started going to office, and gradually we are improving and getting back to our normalcy. So we, myself, and with me today, there is Vibhuti is there. Some of you might have seen her in the first batch, especially Mrinmoy, or might have seen her Vibhuti in RGF. She is psychology background, working with mental health issues. She did a tremendous work during this lockdown period, finding out how all of you are feeling, helping everyone to cope up with the tense, anxiety, depression, whatever. Because it's all new for all of us, and we don't know, especially even in our education sector, there is no training or nothing how to handle if such situations comes. From child to the old age, senior citizen, everyone were affected. So we all were helping each other how to deal, how to handle, how to keep a positive attitude. So Vibhuti played a very good role, and she was totally busy. So we also thought, let's introduce her to you. You can call her Vibhuti Didi, okay? You can call She's me just Vibhuti only also. It's few okay. years. I like feeling that I'm younger than older. Yes, she's very young. Someone calls me auntie, then you're Okay, out. only 1 or 2 years more than you. So you can call her Vibhuti Didi. She will tell herself about what her background and why she is here. So it's very nice. Even the first batch had faced a lot of difficulties during COVID. They had to go back immediately to their hometown, especially the three girls from Manipur. All are aware that they traveled by road from Manipur, from Jaipur to Manipur, around almost 4 days. So I'm very happy that they handled the situation very well. I'm very proud that they were energetic. They were very courageous to travel by road. RGF met their travel expenses, and the trip was wonderful. Even recently, Diana wrote a complete story about how their feelings was, how the journey started, and how they reached safely. It was a big responsibility for RGF too, bringing them back to their hometown and keeping in a safe place with their mothers. So we thought just to hear from them also, how was the experience, their road travel, and especially from all of you, how was your life during COVID, and now back to a new environment. What is your expectations? What is your dreams? And since Vibhuti is with us, you all can have a moral support, mental health, whether it is related to some mental stress or any teenage issues or youth issues, adult issues. So Vibhuti Didi is exactly like a friend to you. She will help you whatever way she can. So I just introducing Vibhuti. Now Vibhuti, you can take over. Thank you so much, Sujata ji. I don't think I could have asked for a better introduction. You can call me Vibhuti Didi, you can call me Vibhuti, you can call me ma'am, you can call me whatever you feel like calling me, whatever comes naturally to you. Huh? There's no correct or wrong way of addressing me. So, like Sujata ji said, I have a background in psychology. I'm a counselor, and I we haven't met earlier. I don't think I've met any one of you earlier, even if it was online. So we thought that एक session करते हैं with all our children who passed out of school and who are now doing higher education, and just getting to know you, getting to know how this whole year has been for all of you. I know for all of you in your own way, it would have been tough. And थोड़ा बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं. Let's just sort of share our experiences.
and we can then take it from there once we get to know each other a little better. So, I would request that if I can call out your names, and whenever I call out your name, just unmute yourself and just introduce yourself. Thoda sa. What are you doing? Which subject are you studying? Which year are you in? And how's it been for you this last year? Just a small introduction, and then we'll move forward. Yeah, Anjali, as you entered first, you want to start? Good afternoon, Didi. My name is Anjali Gupta and I'm from Mumbai. And my current course is BTech CSE and I'm right now in second year. Okay, BTech CSE, what does that mean? Computer Science and Engineering. Oh, yeah, okay. Interesting. Okay, you are in your second year now. Yes, ma'am. And how have you enjoyed or not enjoyed your college in the first year? It was good. Like it was very new to me. Like every branch like they were studying in a like amalgam. Mhm. Like every branch was studying in amalgam, and then how exams were going on. Everything was new to me, and I really enjoyed it. Yeah, Yeah. that's nice. So did you ever step out of Bombay Pilot? Uh, Never. Never. Great. So for someone who's never stepped out of Bombay to go to Jaipur, which is not very close, Delhi से तो फिर भी जयपुर पास है. तो Yes. बॉम्बे से पास जाना, दूर जाना rather to Jaipur, and मैं यूजुअली मैम हमेशा होम टाउन जाती थी वो भी मम्मा के साथ बट अकेले आना वाज प्रीटी डिफिकल्ट टू बी मैं सोच भी रही थी कि आके यहाँ पे मैं आ तो जाऊंगी बट फिर मैं कोप अप कर पाऊंगी नहीं कि यहाँ पे लोग कैसे यहाँ पे पढ़ाई कैसे होगी अकेले कैसे रहना है वो हम्म, सब थोड़ा अभी तो हो गया अभी आ गए तो अभी कैसा करना ही होता है. हम्म, हम्म. Yes. Great. See, Sujata ji, I'm just thinking कि how old are you, if you don't mind me asking? Ma'am, I'm 20 right now. A 20-year-old child is saying कि अब आ गए हैं तो करना है, तो करो. Resilience और किस चीज को बोलते हैं? This whole last year was all about resilience, and this is resilience in one line. है ना? Diana ji, you're saying something. हाँ, वो एक्चुअली फर्स्ट डे जैसे ही पहुंचे हम लोग इन सबको छोड़ के आ गए थे ना व्हेन आई लेफ्ट देम देन उसके कुछ दिन बाद इन लोगों को ऑफिस दिल्ली बुलाना था ना तो बाकी जो मणिपुर से जो बच्चे गए लड़कियां गए रिया सलीमा और ग्रेसी दे वर न्यू टू ट्रेन दे नेवर सॉ ए ट्रेन इन देयर लाइफ तो वो क्या किए हमने क्या किए अंजलि एज ए रेलवे बैकग्राउंड मदर इज वर्किंग इन द रेलवे and then another thing is Mrinmoy. So Mrinmoy, he used to come to me from his hometown via train. And Mrinmoy भी ऐसा बच्चा है जो who has never spent a single night without his family, either मामा या मम्मी या मासी के साथ. तो मृन्मय तो मैं अकेले लेके आ गई ना he came along with me. फिर मृन्मय को ट्रेन का एक्सपीरियंस था. Then अंजलि दोनों को पकड़ा सुजाता हम दोनों ने ऐसे कि you bring your responsibility to bring all of you together to Delhi. कैसे ही हम लोग रात को भी सोए ही नहीं थे रात को मतलब कहाँ पहुंचे I was monitoring then Mrinmay also he kept sending me the location मतलब बहुत sweetly you know these two kids they managed them brought them to Delhi वहां पर दिल्ली भी घुमा वो लोग अपने आप क्या बात है, what responsibility and what sort of volunteering to take on such a responsibility कि अच्छा चलो हम लेके आएंगे बाकी बच्चों को. Great. So, Josila, you want to introduce yourself? Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, everyone. My name is Joshila, and I'm in BSc Biotechnology right now, and I'm in first year. BSc Biotech. How are you liking it, Josila? I think it's pretty good. Yeah. Where are you And from? Manipur. yeah, I'm from Manipur. Okay. the Did new you batch ever come out of Manipur earlier? Yeah, I've gone out before. Yeah. Where did you go? Bangalore and Goa also. Ooh, wow, what fun. Two very nice cities. I like both of them very much. Okay. So, but this is your first time being away from family? Yeah, And how has that been for you? uh, I think
it's also like even though if I'm not with my family, I think I can handle with it. Like I have other friends also with me, so I don't feel alone. So friends are becoming your family. Yeah, I cannot feel the loneliness without my family or my parents. So I just have them. So I think it's nice and it's good. Yeah. So how long has it been since your course started? You're in your first year, right? Yeah. It started in November through online classes, but we joined it in December, and right now we are about to have exams also, and it's about to end. Oh, okay, okay. So all of this has happened during COVID. Yeah, it's too fast. Yeah, yeah. COVID itself is hard to digest, no? And then all of this happening while COVID. So, how has your family been, about you traveling, about you coming here and living by yourself? How have they taken it? Actually, my mom came to drop me till here, Mm-hmm. and they're okay, and like they used to call me every day, like how are you, like how can you manage it there, like what kind of food did they give you. Actually, I'm picky in things like food also, so that's why they're asking like, can you even eat those foods that are given in hostels and that. Yeah. So, what kind of food do you get? Like they give rice and rotis with other things also. Mm. I think I'm enjoying it. Yeah. That's nice. Actually, Vibhuti, Joshila is very strong-headed, Mm. and I can see that. she can be stubborn also. Yeah. जब when I left the hostel, I had so to it that सबको अलग-अलग room. Then बाद में अगर if they girls have paired up, she has paired up with Pramananji's daughter Jyoti. Oh, अच्छा. Then तो सब they are in the same class ना, so सबका दो पेयर, so 2 रूम लेके एक को स्टडी रूम एक को बेडरूम बना के वो लोग थे. Then there was shortage of hostel rooms. सब लोग आके बोल रहे थे कि कंबाइन करो तुम्हारे रूम में ये भेजेंगे वो भेजेंगे. And then she called me and I said, got to fight on your own. Be stubborn, don't give up. So she was stubborn only. Finally, she relented only when when the former warden, all came and talked to her and said, it's only up to April when the final year students goes, you can have separate rooms. Only then she relented, and she would have only Jyoti in her room and no one else. So, No, Diana they're ji, learning to fight. like you said, you started by saying that she's a very headstrong girl. है ना? तो I don't like using the word stubborn. I like using the word headstrong, because I mean there are two parts to being headstrong. One is कि भाई अब when you're forced to do something you don't want to do तो बुरा लगता है, you don't like doing it. But the other part of being headstrong is also that I know exactly what I want. Yeah, so when you know exactly what you want, you'll do whatever it takes to get it, because उसके अलावा तो कुछ चलेगा ही नहीं. Right? So someone like Joshila, if she's so headstrong and she'll know, okay, this is what I want, she'll do whatever it takes to get it. No, Joshila? Am I wrong? No, it's right. Yeah. So great. Okay. Good. Okay. So what do you want to do after your BTech? I just want to complete like I don't know what my future holds, but still I wanted to go for further studies, like doing PhD and all. Oh wow. Oh wow. Okay. That's interesting. Okay. Good to know. Good to know. Thank you, Joshila. अब कौन बोलेगा? Sabur, only one boy from Kashmir. हाँ जी. वेलकम. बताइए क्या कर रहे हैं आप, कब से हैं यहाँ पे? मैम 20 फरवरी आया मैं. अच्छा, फर्स्ट ईयर. यस मैम. Okay. बीजीएमसी जर्नलिज्म. क्या पढ़ रहे? मैम जर्नलिज्म बीजीएमसी एंड मास कम्युनिकेशन. ओह वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा जी, तो क्या करना है आपको?
मास कम्युनिकेशन मैम और ट्रैवलिंग, जर्नलिज्म करके? मैम ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करनी है? यस मैम। तो क्या टूरिज्म में जाना है? नो मैम, पूरी दुनिया घूमना है मैम, ट्रैवलिंग करनी है, फोटो कैप्चर्स करने हैं, हाँ कि जानना है किस तरीके से लोग रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये जी मैम। आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी एक पैशन है जो आप करना चाहते हैं, है यस ना? मैम। इस यस पैशन मैम। को फुलफिल कैसे करेंगे? मैम करेंगे, देखेंगे क्या होता है आगे आगे। मैम पहले तो मतलब पढ़ेंगे अगर जॉब। हाँ, तो इस यस मैम। पैशन को जो अभी कर रहे हो उससे जोड़ो। जर्नलिज्म कर रहे हो, मास कम्युनिकेशन कर रहे हो, उससे पैशन यस कैसे मैम। हासिल होएगा? मैम क्योंकि मैम जर्नलिज्म से पता चलता है कि मैम कैसे बात करनी है लोगों से, इंटरेक्ट कैसे करना है उससे। ठीक है, तो जर्नलिज्म का कम्युनिकेशन तो के यही जरिए है से। ना। यस मैम, कम्युनिकेशन कैसे करने की, कैसे लोगों को पहचान ले। हम्म हम्म, मैम इसीलिए। ठीक है ठीक है। तो काम क्या करोगे जर्नलिज्म के बाद? मैम ट्रैवलिंग की मैम, या तो अगर किसी न्यूज चैनल में आ गए हम्म, तो या तो आरजे करेंगे। ओह अच्छा, नॉट बैड। इसीलिए वीडियो ऑफ करके बैठे थे, आरजे बनना चाहते हैं। यस मैम। इसमें वीडियो तो दिखता नहीं है ना? अच्छा चलो, वेरी नाइस। ठीक है। और कैसा लग रहा है अभी? मैम बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है इधर। ओहो, मैम बाहर कश्मीर नहीं वाले, निकलते दिन में। कश्मीर वाले लोग गर्मी से बड़े परेशान हैं। मैम मैं तो दिन में बाहर नहीं निकलता, शाम को 6 बजे के बाद निकलता। तो ये पहली बार आए हो क्या इधर? मैम बहुत जगह घूमा, लेकिन राजस्थान में पहली बार आया। अच्छा, तो कहाँ घूमे हो पहले? मैम गोवा गया हूँ। वाह, गोवा तो इस फेवरेट सबका। मैम मैं छुट्टियों में वही, फिर से जाऊंगा। मैम हाँ तो छुट्टी तो अगर होगी तो समर वेकेशन में फिर से गोवा जाऊंगा। बढ़िया। तो गोवा गए हो और? मैम गोवा, दिल्ली गया हूँ। हम्म, मैम 2 जगह अभी। अच्छा, तो ये कब कब गए हो? मैम एक तो मैम सिट्रैक 2017 में, 2016-17। अच्छा, तो सीधा कश्मीर से? यस मैम। चलो अच्छा है, बट अकेले रहे हो कभी? मैम अकेले ही रहता हूँ, पसंद है अकेले रहना। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। कश्मीर से और लोग नहीं है ना? नो मैम। तो नहीं, कैसे कैसे हैंडल कर रहे हो अब? अकेले रहना अच्छा लगता है वो तो एक चीज है, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो उतना भी नहीं है कि मैम, जब कोई देखता है कि बोलते हैं कि मैम पहली बार जब यूनिवर्सिटी में आया तो बोल रहे कि वहां पे तो पत्थरबाजी होती है, तो आप भी होंगे शायद उन्हीं में से। मैम पहले दिन यही फेस करना पड़ा कि कोई बोलता है, किसी का माइंड है। हम्म हम्म तो मैम ज्यादा नहीं लेता, तो ऐसे ही छोड़ता हूँ, जाने दो, क्या इसका भी क्या करेंगे। हम्म तो बोला तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं बहुत सारे बोलते कि यही फेस कर रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम बस। थोड़ी सी नहीं यार, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। बुरा लगता है जब कोई ऐसी चीजें बोलता है। मैम बुरा नहीं लगता मैम, बुरा नहीं लगता मुझे। नहीं? नो मैम, बुरा नहीं लगता। अच्छा, तो कोई मैम बोल दोस्त रहे कि बनता आप है? किसी से मिलते जुलते। नो मैम, एक ही फ्रेंड है अभी बस, तो मैम ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, एक फ्रेंड है बस, वही काफी है। ठीक है। तो क्या करते हो, सुबह से शाम तक कमरे में रहते हो? यस मैम। क्या करते हो कमरे में? मैम यूट्यूब, स्टडी और कुछ हम्म, नहीं। बस? मैम म्यूजिक तो सुनता नहीं हूँ मैं। हाँ, मैम बस यूट्यूब और स्टडी बस। चलो ठीक है ठीक है। अब धीरे धीरे और टाइम बिताओ, देखो क्या क्या पढ़ाई में और है, क्या मजा आ रहा है यस नहीं आ मैम। रहा है। और कोई अगर यस मैम। प्रॉब्लम आती है, मन करता है बात करने का, तो हम हैं ही। एंड दिस इज ओके। फॉर एवरीवन। इफ यू एवर यस फील मैम। लाइक टॉकिंग, आई एम अवेलेबल। मेरा नंबर डायना जी के पास भी है, सुजाता जी के पास भी है। आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। so now Meghna, you can say. या, Meghna from Telangana, Warangal. ओह, हेलो मेघना, Hi, ma'am. हाउ आर यू? Fine, ma'am. How are you, ma'am? आई एम गुड टू। आई डोंट थिंक यू वर देयर इन द बिगिनिंग, सो यू मे नॉट नो मी। Yeah, ma'am. We are in a freshers party. Ah, what fun. Sorry, we pulled you out of your freshers party. So my name is Vibhuti, and I'm a counselor. I have a background in psychology, and I'm here to get to know all of you, to talk to you, and just understand how your year has been, how it is for you to move from wherever you come from and come to Jaipur, and how it has been going.
So tell me a little about yourself. Your name I know, but which year are you in? What are you studying? I'm from Telangana and I'm studying physiotherapy, Oh, okay. and the studies were going good. Yeah. So you're a fresher, I'm assuming, because Yeah. ठीक है. And when did you come to Jaipur? On January 10th I came. Okay, so it's been about 2 months. 2 months? 1 month आज का तारीख है? nearly. Yeah, 2 months हो गया. Okay. Mhm. ठीक है. All right. So you're saying it has been good. I can see you're sitting with a friend, maybe. Have you been able to make friends? You have more people from Telangana here? Yeah, ma'am, I have friend from RGF. Oh, hello. What is her name? I can see her in two cameras. Very interesting. Okay, so Meghna, tell your friend to start talking and introduce herself. Ma'am, I myself Sinmayam Devini hai, and I study physiotherapy. Oh, you're also doing physiotherapy. Okay. And where are you from? I'm from Manipur. ठीक. Okay. Ria, Gracie, and Nishanta are left. Gracie? Nishanta is Mrinmoy's brother, and he just joined the university this year. So he's in MBA. MBA? Yeah. Yes, Oh, ma'am. क्या बात है. बताओ निशांता थोड़ा. Hello, ma'am. As you know, my name is Nishanta Burman, and I am from Assam. I have completed my BSc from Guwahati University. Now I am studying in MBA. तो अच्छा ही लग रहा है मैम यहाँ पर. हमारे फैकल्टी भी दे आर वेरी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आने से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा लगा. तो मेरा भाई तो यहाँ से 1 साल पहले से ही रह रहा है, तो मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर. तो अच्छा ही है मैम, सब ठीक ठाक. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो MBA करने के बाद क्या करना है? मैम मैं सोच रहा हूँ कि MBA करने के बाद या तो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दूं, नहीं तो मैं एक खुद का ही डिजिटल स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ मैम. डिजिटल स्टार्टअप मतलब? डिजिटल मार्केटिंग के जो छोटे छोटे कंपनी होता है मैम, उसी तरह एक डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप बनाना चाहता हूँ. तो मेरा MBA में डिजिटल मार्केटिंग में मेरा MBA है. तो ऐसा सोच रहा हूँ अभी मैम. साउंड्स गुड. मृण्मय क्या कर रहा है? मृण्मय बीटेक कर रहा है अभी. ओ अच्छा, तो आप कॉमर्स साइड चले गए और ये साइंस साइड है? वो साइंस है, मैं कॉमर्स. वेरी नाइस. Good. Actually, Vibhuti, he has been given the task of managing all the events in the university. So he's feeling very happy, comfortable as it is. He has his own ये society है, NGO है, Explorica करके. इसमें से he and मृण्मय दोनों मिलके इतना कोविड के टाइम में धमाल मचाया असम में. पूरा he has organized a big event, बुक फेयर, उसमें पूरा कल्चरल फेयर, इतना बड़ा आसाम में धूम मचा दिया. आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस टू ब्रदर्स. तो बताओ भाई थोड़ा, गिव मी सम डिटेल अबाउट दिस. बस अपना नाम और MBA बोल के चुप हो गए. They are good in tree plantation also. बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किया आसाम में. अच्छा जी. 2000 plus plantation किया during our drive. Wow, that's amazing. तो बताओ निशांता क्या किया कोविड के टाइम पे? गिव मी सम डिटेल. मैम कोविड में टाइम में हमने क्या किया, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन से हमने असम में जो हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, उस मेंबर को रिलेट करके हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिप्रेशन के ऊपर हमने कोई गेस्ट बुलाया. उसके लिए हम जूम मीटिंग किया, और उसके बाद हमने जो हमारे दूसरे गांव में जो पोर पीपल होता है उसको हम फूड भी डिस्ट्रीब्यूशन किए. एंड उसके बाद मैं पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग में काम किया. तो ऐसे ही मैम बीत गया सारा कोविड के टाइम में. मॉडेस्टी देख लीजिए डायना जी, जरा सा बोल के छोड़ दिया.
तो जब आपने बोला हाँ कि मैम। आपका एनजीओ है, क्या ये कैसा एनजीओ है, किस चीज पे काम करता है, कौन लोग फाउंडर हैं, थोड़ा बताइए। हाँ मैम, हाँ मैम, हमारा एनजीओ का नाम है एक्सप्लोरिका एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी। हम सिर्फ एजुकेशन और कल्चर जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के ऊपर काम करते हैं। एजुकेशन के एजुकेशन और क्या? डिपार्टमेंट में एजुकेशन एंड कल्चरल मैम। कल्चरल, ओके। यस मैम। सो एजुकेशन के ऊपर अभी हम असम में अभी सोच रहे हैं हमारे टॉप 10 असम के जो लोअर असम के जो टॉप 10 कॉलेज है उसमें हम एपीएससी और यूपीएससी के फ्री सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे मैम। वहां पर दिल्ली से वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट आईएएस एकेडमी से वहां पर फैकल्टी जाएंगे और फ्री सेमिनार वो प्रोवाइड कर देंगे हमारे एक्सप्लोरिका के नाम से असम में। और Very nice. अभी अभी हाल ही में कौन हम चलाता है ये? फिर सॉरी। हाँ मैम, एक्सप्लोरिका तो फाउंडर तो मैं ही हूँ मैम, और मेरे साथ मेरा भैया भी है और उसके साथ हमारा फ्रेंड्स एक और काफी सारे, अभी तक हमारा 2 साल हुआ है, अभी तक कॉलेज के काफी सारे प्रोफेसर्स तो ऐसे हमसे जुड़ गए हैं अभी तक। Very और good. हाल ही में हमने बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया है, जो बुक फेयर में 7 फरवरी से 14 फरवरी तक वो बुक फेयर हुआ है। उसमें हमने असम के जो सबसे बड़े एंकर है नीतूमणि शइकिया, उसको भी हमने बुलाया है और बहुत सारा गेस्ट भी हमने बुलाया था उस बुक फेयर में। Very good, very impressive. थैंक यू मैम। Good, good. और ट्री प्लांटेशन के बारे में थोड़ा बताओ, हाँ मैम, एनवायरमेंट के हमने लिए जो काम चल रहा है। और तुम क्लासेस हाँ लेने आते हो, मोटिवेशनल क्लासेस, हाँ हाँ मैम, मोटिवेशनल क्लासेस भी ले रहे हो ना, बताओ ना क्या क्या कर रहे हो। हाँ 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 बताओ, मैम, हम भी हम तो जाने, बाकी जो हमारे कोलीग्स वो भी जाने तुम्हारे बारे में। हाँ मैम, 2019 में हमने तकरीबन 2000 से ज्यादा ट्री प्लांटेशन किया सारे असम में। तो 2020 में तो हम तो कर नहीं पाए, इसलिए हमने 2020 में हमारे सभी असम में तकरीबन 2000 से ज्यादा मेंबर है, इसलिए हमने उसको एडवाइस किया कि आप लोग घर में ही एक ट्री प्लांट कीजिए। और उसके बाद हमने अभी तक शायद 2000 से ज्यादा ट्री प्लांटेशन हमने कर दिया पूरे असम में, असम के स्पेशली इन लोअर असम। और उसके बाद हमने सारे असम में क्या किया, कभी कभी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ओनली फॉर सॉफ्ट स्किल के हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करता हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है ओनली फॉर सॉफ्ट स्किल के ऊपर। वहां पर हम बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल उसके बारे डिटेल्स में कुछ डिस्कस करते हैं। ग्रेट। तो फिर हाउ डू यू नो कि किसको बुलाना है, या जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगर करना है तो कौन करता है ये ट्रेनिंग? हाँ हाँ मैम, हमारे अभी तो मैंने आपको बोला कि जब आप 2 साल हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, अभी बहुत सारा प्रोफेसर्स, बहुत सारा टीचर्स भी हमने से जुड़ गए हैं, इसलिए ऐसे ही एक मीटिंग करके हमको पता चलता है कि इसको बुलाना है, इसको बुलाना है हमारे मीटिंग में, तो ऐसे ही हो जाता है। तो नेटवर्किंग करते हो बेसिकली, तो उससे पता चलता है। यस मैम, यस मैम। एंड यहाँ पर भी मुझे ये अच्छा लगा कि मैं एमबीए में सिर्फ और सिर्फ यही बात सिखाया जाता है, हाउ टू ऑर्गेनाइज ए इवेंट, आपको टीम मैनेजमेंट कैसे करो। तो मुझे यहाँ पर सभी प्रैक्टिकल लग रहा है। और हाल ही में हमारे यूनिवर्सिटी में जो एक्सुबरेंस 2020-21 है, तो वहां पर भी हमने कोऑर्डिनेट किया, हमने ट्रेजर हंट गेम में कोऑर्डिनेट किया, बी क्विज में कोऑर्डिनेट किया, और बी बिजनेस प्लान में भी कोऑर्डिनेट करके हमने सारा अरेंज किया। और नेक्स्ट साल तो सभी 90% काम तो हम तो नेक्स्ट साल सेकेंड ईयर हो जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट साल 90% काम तो हमको ही करना पड़ेगा। And he's so eager and happy to do it. I know, I can Yes, see, ma'am. I can look at his smile. Great, good job. I'm so glad आप Thank you, लोग ma'am. इस उम्र में इतना you're so ambitious, and you're doing something to give back to the society, and the way you're doing it, it's great. Hats off. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Should we move on to Anjali and maybe tell us a little about how the experience of getting all of them in the train, and then we can move on to maybe Ria or Gracie to tell us how they came back. Ma'am, when we were informed to go back to go Delhi,
then the Ria, Gracie and Salma were like, we never traveled to train, how we can go alone? Then I was like, keep calm, I have some experience, I will take there too, no worries. And they were like, everything was very fascinating to them. यार ट्रेन ऐसे होता है वो like हम आधी रात को, और वार्डन मैम also helped us to board to the train. Then and they were like, यार ये तो बहुत अच्छा है, it was very good, like first time experience was very good. Then we reached there, then we went to the exact location, we met Mr. Rahul Gandhi, and that was very good experience. And then we also went in some good places in Delhi, like Connaught Place, and like very, I don't know what places are good in Delhi, but Connaught Place, and the traffic was very heavy. The traffic was very heavy compared to Mumbai. It took us almost So one. first time coming to Delhi? No, I came Delhi many times, but I never traveled much. I used to stay at a single place, but I never traveled much. But this was the time I saw the real traffic. Well, how a real traffic looks like. So when you came, so where did you board your train from? Jaipur? Ma'am, yes, from Jaipur. It's ma'am, station का नाम तो याद नहीं, but it was a minor station, not the Jaipur junction. वहाँ से मैम हमने 5 बजे की ट्रेन पे हम लोग बैठे. Then we reached like in morning, something at 7, 9, or it took us 5 hours. तो Then रात 10 को के जब around तुम लोग पहुंचे थे. आए, कौन था गाड़ी में, मतलब ट्रेन में? Who all came with you? ट्रेन में मैम मैं थी, रिया, ग्रेसी, सलीमा, मृण्मय, एंड हमें छोड़ने के लिए हमारी वार्डन मैम भी आई थी. तो वार्डन मैम ट्रेन में आई थी या सिर्फ स्टेशन तक आई थी? स्टेशन तक आई थी, हमें ट्रेन में बैठाया. वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, हमें पूरा अच्छे तरीके से समझते. अभी वो है नहीं, शी रिटायर्ड फ्रॉम अ जॉब, बट शी वाज वेरी गुड. हर काम जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी, लाइक इफ समवन फ्रॉम अस गेट सिक, so she would take us to the hospital and do every sort of thing which was possible. So अब जब तुम, so you and Mrinmoy were the only people who knew how to travel by train, the others didn't. Yes. ना? तो बाकियों को डर वर नहीं लगा रात को? हाँ मैम, डर तो था, बिकॉज उनको एक चीज बहुत गंदी लगी वहां पे, बिकॉज जो हमारा ट्रेन का सीट था वो वाज वेरी नियर टू द टॉयलेट, एंड दे वर लाइक, या दैट थिंग वाज बैड, लाइक दे वर यार यहाँ पे तो स्मेल आ रही, दिस इज नॉट गुड. बस ये एक्सपीरियंस सबके लिए गंदा था, बाकी एवरीथिंग वाज गुड. दैट्स नाइस. नाइस. सो ट्रेन जर्नी तो मुझे भी बहुत पसंद है. आई लव इट. आते टाइम द ट्रेन जर्नी वाज वेरी गुड मैम. वी नेवर सैट इन अ शताब्दी ट्रेन. It was very good. So Everything was provided to us. शताब्दी में मैम, शताब्दी में आई थॉट कि स्लीपर होगा, बट मैंने जस्ट शताब्दी में गया तो एवरीथिंग वाज सीटिंग में था. वो टाइम टू टाइम आते थे, हम एकदम कोजी था मैम, टोटली कोजी था, बहुत अच्छा लगा. टाइम टू टाइम खाने के लिए आता था, फिर इट वाज लाइक लग्जरियस, बहुत अच्छा लगा. Great. ठीक है. And how did you go back to Mumbai because of the whole COVID thing? मैम, ये थोड़ा लाइक हमें जब भी यहाँ पे पता चला कि कोविड बूम पे था, बहुत ज्यादा उस टाइप हॉट टॉपिक था, तो मैं आई थॉट कि मुझे पहले निकल जाना चाहिए. तो अराउंड मैंने 14 की फ्लाइट बुक करा ली इमीडिएटली, कि मुझे, आई वाज नॉट श्योर कि ये लोग भेजेंगे कि नहीं, यूनिवर्सिटी वाले भेजेंगे कि नहीं, आई डिडंट नो. देन मैं जिस दिन ट्रेन निकाली मैम, उस दिन अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, टिकट निकाली मैंने, अगले दिन फ्लाइट थी. तो उसी रात को मैम सबने, मतलब जो यूनिवर्सिटी वाले थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हैव टू गो बैक टू योर होम टाउन्स, विल गिव यू 3 days ऑफ टाइम. देन आई वाज लाइक, ठीक है मेरा तो हो गया, बट अब ये तीनों कैसे जाएंगी? बट इट्स लाइक फ्रॉम एक्सट्रीम वेस्ट टू एक्सट्रीम ईस्ट. तो मैम मैं तो चली गई थी, फिर बाद में मृण्मय, ये फिर उनको ट्रैवल करना पड़ गया कुछ ज्यादा. वो बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी मैम. जिस दिन अनाउंस किया था ना, आधी लड़कियां तो अपने होम टाउन से आ रही थी यूनिवर्सिटी, और उसी दिन अनाउंस कर दिया कि तुमको जाना है, वापस जाना है. यस. ठीक है. Yeah, it was, I think, a scary situation उस टाइम पे. तो लग ही रहा था कि भाई बहुत केओस हो गया था मैम, बिकॉज किसी अभी आ तो गए यहाँ पर, किसी को ट्रेन के टिकट्स नहीं मिल रहे, फ्लाइट के टिकट्स नहीं मिल रहे, सोर्सेज हम हर जगह हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाती. वो सब लोग फेस कर रहे थे सिचुएशंस थोड़े, बट सब चले गए. But I'm glad that you took the decision कि भैया ले लो टिकट और चलो, because ये थोड़ा इशू रहेगा. तो I'm glad you did that. Makes sense.
ठीक है, ठीक है. And how are things अब कॉलेज में? अब things are settled down? यस सर, ऐसा लगता ही नहीं मैम यहाँ पे कोविड का कोई मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पर. एवरीथिंग इज प्रीटी फ्रेंडली और कुछ ऐसा लगता ही नहीं है. अब काम में लोग इतना बिजी हो जाते हैं, वी आर बैक टू स्टडीज नाउ, बैक टू वर्क. फील ही नहीं होता है कि मैम ऐसा कुछ था भी. 1 year of vacation, spending times with family, that was very good. हाँ. Good. I'm glad you use that time to enjoy yourself and not be Yes, miserable. Good. Great. ठीक है. And Thank you. Vibhuti, हाँ जी. I want to mention something. अंजलि's मम्मी को अवार्ड मिला है रेलवे की तरफ से कोविड योद्धा. Oh wow. I saw it अच्छा. on Facebook. हाँ. So she was ये working बच्चे अपने आप क्यों relentlessly. नहीं बताते हैं मुझे ये वाली चीजें? So she was working relentlessly during the COVID in her department. And अभी Women's Day में इनको अवार्ड मिला है सावित्री जी को. Oh, that's so nice. So nice. Congratulate your mom on my side. Thank you. Thank you, sir. ठीक है. Diana ji, who should we talk to next to? Let's go to Mrinmoy. Mrinmoy, पहले तो लड़की लोग हमको नहीं बता रहे थे कि they were asked to leave. They were talking to their moms and everything. Mrinmoy मेरे को बताया कि what the problem was. He was the one who called me and informed me कि university वाले vacate करने के लिए बोला है. Then I called up the girls. So the girls said कि आपको trouble नहीं करना चाहते. But they were at a loss. फिर Mrinmoy भी पूछ रहे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. Then suddenly he didn't ask me. He just took the ticket and went back home. थोड़ा बताओ Mrinmoy इसके बारे में. हेलो मैम. मैं उधर क्या हुआ, मैं घर से आया था 9 मार्च को इधर होली के दिन लास्ट ईयर. फिर क्या हुआ, मैं जब इधर आया तो फिर ऐसे होली के दिनों में छुट्टी थी तो ऐसे चल रहे थे हमारे क्लासेस भी. मतलब क्लासेस तो बंद थे पर अपन ऐसे मस्ती कर रहे थे इधर. फिर क्या हुआ, हमारे इधर 13 तारीख को शायद हॉस्टल के ग्रुप में एक मैसेज आया. फिर ये मैंने रात को ही डायनामा को फोन किया, फोन करके बताया इनको ये ऐसा ऐसा हमारे इधर मैसेज आया, हमें अभी क्या करें. फिर घर में भी बताया तो घर में माँ ने बोला जल्दी से. मैसेज था मैं ये कि वो आपको 48 आवर्स में पूरा हॉस्टल खाली करना है वगैरह वगैरह. 48 आवर्स में? कोविड का टाइम आ रहा है इसलिए. यस मैम. वाह, अच्छा. तो मैं उधर से घर में फोन किया माँ. फिर घर में फोन करने के बाद माँ ने बोला मेरे को तुम टिकट करके इधर आ जाओ. तो मैंने फ्लाइट में देखा तो फ्लाइट नेक्स्ट दिन का फ्लाइट नहीं था. फिर मैंने पर 16 तारीख की फ्लाइट कर ली और 16 तारीख को उधर से निकल गया. बस फिर घर में आके ऐसे बैठा रहा. पूरा लॉकडाउन 1 साल लगभग होने वाले हैं अभी. वही बाकी जो हमने काम किया इधर लॉकडाउन में वो सब तो भैया ने आपको बता ही दिया होगा. हाँ, वो तो बताया. वही चल रहा है माँ. That's great. Mrinmoy, you traveled to Bangalore also in between? From Jaipur? Yes, ma. Traveled to Bangalore? Not from Jaipur. I have traveled from Guwahati to Bangalore. In 1st January 2020 to 7th January 2020. In the Art of Living Bangalore, where I met Sri Ravi Shankar Guruji. Acha. So you're into spirituality, is it? I am more of a balanced person. I am in the spiritual field also and in the technical field also. That's nice. Nice. Actually, I want to be in the civil services. So I am preparing for that. Lovely. तो बैंगलोर के आश्रम गए थे? मतलब हमारा क्या हुआ मैम, ये हम कुछ फ्रेंड ने डिसाइड किया ऐसा ऐसा करना है हमको, बैंगलोर जाना है, तो अपन फ्रेंड के साथ चल दिए. अच्छा, तो कहाँ, मतलब डिड यू गो जस्ट जनरली और डिड यू गो स्पेसिफिकली कि आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम जाएंगे? मतलब हमने उधर बुकिंग किया था आर्ट ऑफ लिविंग में. 7 दिन का एक वो होता है हैप्पीनेस कोर्स. वो उसको अटेंड करने के लिए हम सारे फ्रेंड्स ने मिलकर उसको अटेंड कर लिया. उधर तो बहुत मजा आया एकदम. ग्रेट.
डायना जी आप कुछ बोल रही हैं सर? हाँ, actually I was really shocked that they I was really what to say surprised. एक्चुअली मैं उस टाइम मैं केरला गई थी ना उसके लिए जवाहर जनवेदी के लिए मीटिंग के लिए, देन वहां से केरला से मैं वापस आके आई वाज इन बैंगलोर। तो उस टाइम मेरी सिस्टर का घर वहां पर IIM के पास ही है, जस्ट अबाउट 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो वहां से मैं ऐसे ही बैठे बैठे ना आफ्टरनून में चाय पी के वो फेसबुक देख रहे थे, तो देन ही हैड अपलोडेड हिज फोटोज। आई वाज रियली सरप्राइज, क्योंकि पिछले साल मतलब 6-7 महीने पहले that was the first time he traveled outside without anyone. His mother also was holding my hand saying कि आपको दे दिया, आपका ही बेटा है। तो उसने कभी किसी के साथ अकेले मतलब रात भी किसी के साथ घर से बाहर स्पेंड नहीं किया। तो वो नन्हा सा बच्चा जो पहली बार जो मेरे साथ प्लेन, उस टाइम हम दोनों का प्लेन में क्या हो गया, एसी भी खराब हो गया था प्लेन में, और इतना हीट, पसीना पसीना हो के मेरे साथ वो गए। वो बच्चा आज पूरा टीम को लीड करके बैंगलोर आ रहा है। तो मैंने बोला कहाँ पर हो? तो मैं भी बैंगलोर में हूँ, मैं भी बैंगलोर में हूँ। मिलने में वो फिर कहीं लालबाग चले गए थे, तो I couldn't go and meet him or he couldn't come also, it was far off. तो I was so happy that कि एक बच्चा जो 6-4 महीने पहले एकदम पूरा नादान था, अभी पूरा टीम को लीड करके बैंगलोर आ रहा है। पंख लग गए, उड़ गया बच्चा घोंसले से, है ना? And I shared it with Shujata, और हम दोनों कितना खुश हो गए थे ना Shujata जी? Yes, we were so really happy. That's so nice. He was very shy when I met him first time in Assam. Yeah, look at his confidence now. Yeah, now he is the leader. That's great, Minmoy. Thank you, ma'am. Let's come to Riya. Riya, come on. You tell your experience. Hi. How was your journey from Jaipur to Delhi? Me and Dinah used to call you. You were on live. What is happening? Where they are reaching on the way? So just हम दोनों रात को भी सोए नहीं थे। कहाँ पहुँचे? हाँ, नहीं सोए थे। कैसा था रिया? From Jaipur to Manipur in a car. I can't even imagine. It was her idea only. It was her idea. Idea. We were at a loss, no? It was her idea. Oh, she made up with my niece. Oh, सबसे मिलके she planned everything. We were just guiding them, helping them out. So बताओ रिया, tell me the journey from the time you got this message saying कि 48 hours में आपको vacate करना है, उसके बाद से बताओ क्या हुआ? यस मैम, जब वो मैसेज मिला तो हम लोग हॉस्टल पे थे, ग्रेसी सालेमा हम तीनों। फिर वो एक मेमचा मैम था हमारा, वो मणिपुरी वार्डन, अंजलि ने भी बताया था कि हम लोग को ट्रेन पे छोड़ के आया था वो वार्डन मैम। उसे बोला कि मैम कैसे, डायना मैम से भी पूछा था कि मैम हम लोग को ऐसे जाने के लिए बोल रहे, हम लोग ने तो अभी टिकट भी बुक नहीं किया, तो कैसे चले बोल रही थी। तो मैम ने बताया कि अभी तो टिकट बुक करना बहुत मतलब रेट भी बहुत ज्यादा था, और फिर फ्लाइट भी नहीं मिल रहा था। तो हम तीनों ने सोचा कि एक पीजी पे कुछ देर स्टे कर ले। तो फिर पास वाली मेमचा मैम और एक सीनियर बीएससी एग्रीकल्चर पे मणिपुर से एक दीदी है, उसका नाम एलिना है। वो तो काफी एक्सपीरियंस भी हो गया जयपुर पे रहते रहते, उसका तो अभी कोर्स भी खत्म हो गया। तो वो मैं और मेमचा मैम हम तीनों मिलके कुछ एक पीजी ढूंढा, और फिर वहां पे हम तीनों रहे, सलीमा ग्रेसी हम तीनों शायद 1 मंथ तक हम वहीं पे ही रहे थे। उसके बाद हमने वो घर पे जाने का एक ट्रिप बना दिया। वहां पे मैं, सलीमा, ग्रेसी और मणिपुर से एक ब्रदर और एक सिस्टर भी थी, वो भी हमारे पास पे ही था। फोन पे फेसबुक पे फोन पे करके हम लोग तो बातचीत भी हो गई, और वहां पे मिला, और हम पांचों को घर पे जाने के लिए हम लोग ने प्लान बना लिया। फिर वो जो जाने का गाड़ी था ना, वो ढूंढने पे बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मणिपुर तक तो जाना पड़ेगा, वो भी बहुत देर लगेगा, और फिर अगर जाएंगे तो कुछ सेफ वाला ड्राइवर मतलब कुछ ढूंढना पड़ेगा ना। तो हमने वो मेमचा मैम का एक मतलब एक बेटा है, वो भी रात ऑफ रोडिंग वगैरह जाता है, तो हमने उससे कांटेक्ट की। फिर उसने एक भैया को भेजा, वो जो भी उसका
बड़ा क्लोज फ्रेंड था, और उसके साथ हम पांचों घर पे वापस आए। और रास्ते में जा के फर्स्ट हम लोग निकलने के पहले का कहानी बताओ, निकलने के पहले क्या क्या निकलने के तैयारी पहले करना तो पड़ा? पीजी पे रहते मतलब सोए खाने बस यही करते रहे थे। बहुत बोरिंग था। और फिर उसमें एग्जाम भी हुआ था, मतलब हमारी सेमेस्टर का कुछ एग्जाम भी था, इसलिए हमने पहले टिकट भी बुक नहीं किया था। सोचा था कि अगर हॉस्टल से जाओ कहोगे, फिर भी उसके बाद कुछ 10 डेज वगैरह लेके कॉलेज में बुला लेंगे, ऐसा ही कुछ सोचा था। क्योंकि जैसे बड़ा वाला मतलब केस होगा तो मालूम नहीं था ना, क्योंकि एग्जाम्पल क्लोज था, तो हमने वहाँ पे पीजी पे स्टे करने के लिए डिसीजन लिया था। पर उसके बाद बड़ा केस और बड़ा बन गया, तो घर पे जाने का डिसीजन ले लिया हमने, और फिर उसके बाद आया था। और पीजी का वार्डन बहुत अच्छा था। और जो हम लोग कुछ पीजी पे रहते बोरिंग हो गया, तो सलीमा हम दोनों तो हमेशा टिकटॉक वगैरह खेलते हैं, तो उसने उसका साड़ी वगैरह दे के बताया कि खेलो, ये ड्रेस भी पहन के। बोला बहुत मजा आया था टेरेस पे जाते जाते हुए। और उसके बाद हम लोग आ गए, घर वापस आ गए। वो जर्नी सुनो, ये बताओ कि हाउ कम ट्रेन की टिकट बुक नहीं की? वहां पे मतलब मणिपुर तक का कोई ट्रेन नहीं था, अवेलेबल नहीं था, अभी तक नहीं है। मतलब अगर हमें राजस्थान से घर तक आना पड़ेगा, तो फिर हमको यहाँ पे हमारा वो जिलीवा में ना, वहां तक का ही ट्रेन मिलता है। जिलीवा मतलब एक प्लेस होता है, जैसे हमारे मणिपुर से तो थोड़ा दूर होता है, बस अच्छा, वही तक का ट्रेन फैसिलिटीज है। वहां से कैसे जाते हैं मणिपुर, अगर ट्रेन से जाते हो तो? मतलब वो जिस जगह तक ट्रेन जाता है, वहां से मणिपुर कितना दूर है? कैसे जाओगे उधर से मणिपुर? मतलब 1200 किलोमीटर दूर है। ओह वाओ, काफी दूर। वैसे कुछ फोर व्हीलर्स वाले व्हीकल में जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और रास्ता इतना खराब है, यू नेवर नो। इतना खराब है। ओहो, तो तुम्हारे You never जयपुर से know when your जर्नी, vehicle will fall down the hillside. ओह माय गॉड, ओह नो। अच्छा, ठीक है। सो देन अब ये जब गाड़ी बुक किया, ये यू सेड किसी भैया जो ऑफ रोडिंग करते थे, उनके कनेक्शन से ये गाड़ी हाँ, वो भैया मेमचा मैम का सन है, इसलिए उसने अच्छा। कनेक्शन करके And he did भेजा one हमको। very good thing कि वहां से कोविड फ्री एरिया से चूज करके, so that they won't affect the वही ड्राइव करेंगे तो एक गाड़ी में बैठेंगे ना, तो वैसे ही एक एरिया से, ऐसे एरिया से चूज किया जहां पर कोविड फ्री एरिया डिक्लेयर किया हुआ है। या वो भैया ऐसा ही करता है, बहुत नीट एंड क्लीन भी था। जैसे भी हम लोग को रुक के रेस्ट करना पड़ता है, वो जाके नहा जाते हैं। बहुत मतलब अपने आप को बहुत नीट एंड क्लीन पे रख के जाया था। और फिर हमें जब जर्नी से हॉस्टल से निकली थी ना, पीजी से, तो पहले जाते जाते लखनऊ पे स्टे हुआ था, वो रात हो गई थी। तो हम चारों तो नहीं, हम पांचों तो बाहर पे जाके घूम करके बस स्टे कर रहे थे, और भैया को गाड़ी पे सोने दिया, क्योंकि उसको तो ड्राइव करना पड़ता है ना, इसलिए वही सोया। और हम लोग तो जब उसने ड्राइव करना शुरू कर दिया, तो फिर गाड़ी पे बैठ के ही सोना पड़ता था। हम पांचों को तो बहुत टायर्ड था। जर्नी 4 डेज नॉन स्टॉप जा रही थी ना, तो बहुत टायर्ड भी था। फिर घर पहुंच गई, भैया ने हमें वो इम्फाल बाजार तक छोड़ा। उसके बाद हम पांचों का जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है ना, हम लोग 5 का भी कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज का क्वारंटाइन सेंटर पे हमको एम्बुलेंस में लेके गए। उसके बाद हम लोग क्वारंटाइन की, वहां से हम पांचों बस सेपरेट हो गए और क्वारंटाइन की 14 डेज की। उसके बाद घर पे आ गया, और घर पे भी 7 डेज मम्मी ने मुझे अलग रूम पे क्वारंटाइन करना पड़ा था। बहुत टायर्ड था। वेरी टायरिंग। मतलब मेरे को कंप्लेन कर रही थी, मम्मी ने मुझे घर के अंदर घुसने नहीं दिया, अलग रखा। एंड ड्यूरिंग हर क्वारंटाइन पीरियड, तो उसके हम मदर इज एन एक्टिव सोशल वर्कर नाउ, तो वो सबको उसका इन्फ्लुएंस यूज करके बोला उसको अलग सा रूम दो। तो शी गॉट अ बिग रूम, it was in a school, such a huge room, और वो विलेज जो है इट्स वेरी व्हाट टू से windy, जब दरवाजा बैंग करते थे ना, तो शी गॉट रियली स्कैर्ड, तो बहुत स्कैर्ड होते थे, हम उसको बात करते रहना पड़ता था बार बार कॉल करके, स्कैर्ड ना हो। रिया, मुझे बताओ कि ये पूरा एक्सपीरियंस में, मतलब 4 दिन गाड़ी में ट्रैवल करना, एंड यू आर 5 गर्ल्स, नो 4 गर्ल्स एंड 1 ब्रदर था। 4 गर्ल्स एंड 1 ब्रदर प्लस 1 ड्राइवर, हम टोटल 6 था।
टोटल 6 थे। तो ये 4 दिन गाड़ी में रहना प्लस 15 दिन का क्वारंटाइन प्लस 7 दिन क्वारंटाइन घर में, व्हाट वाज द मोस्ट स्कैरी पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस? वैसे स्कैरी पार्ट तो जब मैं घर पहुंच के क्वारंटाइन सेंटर वो एम्बुलेंस करके लेके आया था ना हमारे डिस्ट्रिक्ट लोग ने, वही वहां पे मुझे एक अकेला रूम मिला, अकेला क्लासरूम, जो मुझे अकेले ही क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और वो जगह भी बहुत हिली एरिया है, इसलिए वहीं पे मुझे लिटिल बिट थोड़ा स्कैरी लगा। और उसके बाद तो कुछ नहीं, जब जर्नी आते आते समय तो कोई ऐसा स्कैर वाला नहीं लगा था, क्योंकि भैया भी बहुत अच्छे थे, हम लोग से अच्छे से बात करते थे, मतलब बहुत फ्रैंक भी होता है, भैया भी अच्छा है, और वो ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, और दीदी वगैरह भी, हम सब मणिपुर लोग हैं इसलिए बहुत अच्छे से कंफर्टेबल मिला, क्योंकि जयपुर पे तो बहुत मणिपुरी कम होता है ना। फिर जब जर्नी पे हम लोग को वो लोग मिला तो बहुत अच्छा भी लगा, बातचीत कर करके आ गया। और बहुत टायर्ड वाली जगह तो जब हम जर्नी से आ रही थी ना, वो बहुत टायर्ड था, क्योंकि ऐसा ले करके सोना ही नहीं मिला था, बस बैठ के सोना पड़ता है। जब क्वारंटाइन जगह पे आया तभी तो बेड पे अच्छे से सोया, वहां पे मुझे रेस्ट मिला अच्छे से, घर का खाना भी खाया हुआ और अच्छा लगा। अच्छा, और ये बताओ, ये जो 4 दिन गाड़ी में ट्रैवल किए, नहाए धोए नहीं? नहीं, बस ब्रश किया था। पर भैया तो नहा रहा था, क्योंकि हमें वो अनकंफर्टेबल लगा था, क्योंकि भैया तो लड़का है, वो तो हर ऑल पंप स्टेशन पे ही हम लोग स्टे किया था। ऑल पंप स्टेशन पे वो तो जाके, वो तो हमेशा जर्नी जाते वगैरह करते, उसको तो आदत ही लग गया वो ड्राइवर, तो इसलिए वो तो हमेशा नहाता है बस। और हम लोग तो ड्रिंकिंग वाटर से ब्रश करके रात से ही रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे सेफ नहीं लगा। हाँ हाँ हाँ, बट दैट्स अ वाइज थिंग टू डू। आप रोड पे हो, आप कहाँ जाओगे नहाने ना, तो इट्स बेटर कि भाई अभी 4 दिन ऐसे ही निकाल लो। हाँ, ऐसे ही निकाल लो। बट अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो 15 दिन क्वारंटाइन करना पड़ा और एम्बुलेंस लेके आया, तो एम्बुलेंस वालों ने पूरा वो किट विट पहना होगा? पहना। वो सब देख के डर नहीं लगा? वो थोड़ा तो डर लगा, क्योंकि मेरे लाइफ में पहली बार ही मुझे एम्बुलेंस पे बैठना पड़ रहा था। मुझे मतलब वो एम्बुलेंस के अंदर पे जाके बैठना, मुझे लगा था कि मैं कोई बीमार लड़की हूँ, ऐसे ही सोच रहा था, क्योंकि मम्मी हम दोनों पे बहुत डिस्टेंस पे मिलना पड़ता है, और वो लोग हमारे पास ही नहीं आता, इसलिए मुझे लगा थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा। फिर धीरे धीरे अकेले रहते रहते मुझे थोड़ा आदत लग गई, और थोड़ा स्केयर भी लगा था, तो मैंने डायना मैम को भी कॉल करके बताया कि मैं मुझे अकेले रहना बहुत स्केयर होता है, इसलिए उसके बाद उसके साथ भी मुझे बातचीत करके रहा। और उसके बाद जब 13 डेज पे हम लोग का टेस्ट हुआ था, कोविड टेस्ट हुआ क्वारंटाइन जगह पे, और उस टेस्ट के बाद 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ गए, रिजल्ट नेगेटिव आ गए, तो घर पे सीधा मम्मी लेके आए। और फिर हमारे विलेज पे तो ऐसा कुछ है कि अगर ये लड़की बाहर से आई है तो उसे कुछ कोविड होगा, वैसा बहुत हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, इसलिए मम्मी ने मुझे अकेले रखा 7 डेज। उसके बाद तो मैं घर पे रहा। अच्छा, और वो 15 दिन क्या किया तुमने अकेले? अकेले मुझे सुबह उठ के बस मुंह धो के फिर से सोना पड़ता था, जब तक मैथ्स का कुछ जब हम लोग खाना खाने के समय होता है ना, तो वो लोग एक बेल रिंग करता है, और उसके बाद वहाँ पे कंटेनर पे हम लोग का मतलब खाना रख के नाम लिख के रखता है, वहाँ पे हम लोग को अकेले जाके लेके आना पड़ता है, वो लोग हम लोग से टच नहीं करते। तो जब तक मैच का टाइमिंग नहीं होता तो सो के बस फोन चला के खेल के रहती हूँ गेम्स वगैरह। उसके बाद खाना खा लिया, उसके बाद नहाई वगैरह नहा लूंगी, और फिर उसके बाद सोते सोते थक गई, और उसके बाद रात की खाना आ जाएगा, वो खा लूंगी और सो जाऊंगी। वैसे ऐसे ही गुजरा था, अच्छे से रेस्ट मिल गए 15 डेज तो। भाई आई मीन सुजाता जी, डायना जी, मैं बस सोच रही हूँ कि अगर मैं इनकी जगह होती तो ये इतने पॉजिटिवली ले रही है इसको, बोलिए अच्छे से मैंने रेस्ट किया, चलो अच्छा ब्रेक मिल गया। एक किसी बच्चे ने बोला कि वो 1 साल वेकेशन हो गया। और बड़ों से अगर पूछो कि कोविड के टाइम पे कैसा रहा, तो दे विल हैव अ वेरी डिफरेंट इमेज। अरे हम तो डिप्रेस्ड हो गए, घर से निकलना नहीं हो रहा था, पड़े हुए थे वगैरह वगैरह। हम लोग तो घर पे रहते रहते आदत हो गई मैम, क्योंकि जब छोटे हो वहीं से ही बोर्डिंग पे रही थी, इसलिए अकेले रहना मतलब वही तो आदत तो लग गई। But so much to learn from children, नहीं? मैं और डायना बहुत टेंस थे, हम आपस में बात कर रहे थे, मैं डायना से पूछती बच्चों ने क्या बोला, डायना मेरे से पूछते बच्चों ने क्या बोला, हम क्रॉस चेक करते थे कि दोनों को एक ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बच्चे सही जगह है।
रात को पेट्रोल पंप में रुक रहा है, बाहर निकले तो नहीं, ये आपस में हम आपस में शेयर करते रहते थे कि कहाँ पहुंच गए, तुम्हें क्या न्यूज मिला, मेरे को क्या न्यूज मिले, हम शेयर करते रहते थे पूरे 4 दिन। और सुजाता जी का एक ही कंसर्न था, बच्चों को बोलो खाना ठीक से पैक करो, ये करो वो करो। ओ बाप रे बाप। देखो बच्चों कुछ भी बोलो, to have people like Sujata ji and Diana ji caring for you even though they're so far away and staying awake and being anxious कि भाई बच्चे हमारे सब ठीक ठाक घर पहुंच जाएं, you know, safe रहें, healthy रहें, ऐसा कौन करता है, इतना कौन सोचता है नहीं। हाँ, and another very I have been observing, जब हम सबको लेके गए थे तो मणिपुरी लड़कियां हिंदी नहीं बोल सकते थे। अच्छा। And it was on अंजलि's part, हम अंजलि को बोल के गए थे कि तीनों को हिंदी सिखा देना। साथ में सुजाता और हम दोनों क्या सोच रहे थे कि साथ में रहेंगे तो सीख जाएंगे। तो एक ऐसे मतलब the room was very comfortable ना, एक रूम अंजलि के लिए the first entry में जो रूम है और अंदर वाला जो बड़ा रूम है उसमें तीनों का रूम था। तो वो लोग ना आज ना I'm really proud to say कि Riya has been speaking flawless Hindi, almost flawless Hindi. तो एक साल में इतना improvement देखने को मिला, I'm really happy. Flawless Hindi and in general so much confidence with the way she's talking. Thank you, ma'am. Great, great. And God has been with them. और जैसे किसके साथ आ रहे, so what happened was the girl who came along with her, their senior, na, happens to be my niece. She completed hotel management और वहाँ पर जयपुर में वो काम कर रही थी। तो when she said कि इसके साथ आ रही है, then I talked to her, then it was then I wrote to sir, only then sir approved also, no, कि जानने वाले लोगों के साथ आ रहा है। And the other guy, लड़का जो आ रहा है, is one who is working in what to say, ऑर्गेनिक सर्टिफाइंग एजेंसी OneCert। तो that एजेंसी उसने मेरा एनजीओ को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन 1 साल भी दिया था। तो that's how ना बस I talked to both of them, चलो ठीक है, ये दोनों सीनियर हैं तो they can come properly। तो ऐसे ही साथ में आ गया था। And what happened was this year when सलीमा और ग्रेसी दोनों वापस आ रहे थे जयपुर, and they still knew ना, जैसे कि एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट में आते जाते हैं लेकिन उतना बड़े एयरपोर्ट में they are finding it difficult to find the gates. Luckily what happened was वही प्रतिभा से मिल गई एयरपोर्ट में, she was also coming to Jaipur, तो वो she was guiding them all throughout till Jaipur ना, तो lucky, good luck for all the girls. Oh, I remember when I used to get confused also at airports. It's not easy. बहुत ढूंढना पड़ता है, पूछ के कहाँ है गेट, कहाँ जाना है, फिर जाना पड़ता है। It's confusing, but great. You know, I'm so glad because I can see the growth in all the children. मतलब not only from Manipur, but there's someone from Mumbai, there's one from Kashmir, there's some from. मैं मेरा तो डिले भी हो गया था। क्या हो गया था? मेरी फ्लाइट थी 7:45 पे 10। मैम मेरी फ्लाइट थी 7:45 पे, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे 11 बजे। मैं रात के 11 बजे पहुंच गया, तो यूनिवर्सिटी भी नहीं आ सकता था, फिर होटल में स्टे किया। ओहो। मैम दिल्ली का मौसम खराब था तो 11 बजे फिर पहुंचे। मैम लेकिन मैम जो मेरी लैंग्वेज है उर्दू, तो लेकिन कोई नहीं समझता यहाँ पे। मैम बोल रहे कि बोलने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है। तो मैम तो हम तो उर्दू बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी बोलता है, ये बात तो है। ये बात तो है। नहीं, बहुत सिमिलरिटीज है, आप एडजस्ट कर पाओगे। यस मैम। सिमिलैरिटीज तो है, और आजकल तो गानों में इतना उर्दू इस्तेमाल होता है कि गानों के थ्रू बहुत लोगों ने सीख ली है उर्दू, टूटी फूटी। मैम मुझसे भी बोलते कि हम जब क्लास जाते तो बोलते कि हमें सिखा दो कश्मीरी, हमें उर्दू सिखा दो, कश्मीर के सेब दिखाओ, बहुत कुछ दिखाओ। मैम दूर से बोलते कि आप कश्मीर से हो क्या, मैं बोलता हूँ हाँ कश्मीर से हो। मैम जब बात करते हो बोलते हैं आप कश्मीर से हो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देन। आज की संवाद समाप्त करते हैं एंड वील मीट अगेन सून। थैंक यू विभूति, थैंक यू डायना, थैंक यू एवरीवन। Thank you. Bye.